Hey everyone, welcome to my channel that is Learn with Amrita at the rate Achieve Success. So basically in this video, I'm going to start a guidelines for the teacher. This book is a very simple book which is written by our pioneer that is Father Verghese Penangat. And after reading this book, if you are trying to be a teacher, you will be a good teacher. You can become a perfect teacher. So, this is my first video actually, and I'm uh, really excited to share the guidelines for the teachers. So, let's start without wasting a bit of time also. So, let's focus on the first page here. First, written the teachers. The following guidelines are very important in building a standardized pattern of education in this school or in any of the school. All teachers should try to put into practice these suggestions and guidelines so that teaching becomes an active process instead of a mechanical one. Then here are some general guidelines. The first point is consider teaching as a pleasurable activity instead of tension building exercise. A teacher's attitude affects the class very much. If the teacher is happy and friendly, students automatically become happy and never get upset about the failures of students. They are still in the progress of growing. The next point is that every teacher should clearly explain to the student his or her expectations her expectations from students in a clear and distinct manner. This implies about their behavior in the class, their class attendance and home tasks etc. देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि यदि हम अपने एक्सपेक्टेशंस की हमारी क्या उम्मीदें हैं उन बच्चों से व्हाट वी रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू बिकम टू डू और टू एक्ट इन द क्लासरूम टू हाउ दे एक्ट सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अपने स्टूडेंट से क्लियर कट बोल देना चाहिए कि यस हमें आपसे ये उम्मीद है आप बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जो इस स्कूल को या फिर हमें डीमोटिवेट करे कि हम आप लोगों को पढ़ा ना सकें. तो ये दो जनरल गाइडलाइंस थी जो टीचर्स के पास होनी ही चाहिए किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में या किसी भी इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाने के लिए. तो सबसे पहले हमें ये करना है कि अपने एटीट्यूड को जो है बिल्कुल हैप्पी एंड फ्रेंडली रखना है ताकि बच्चे भी हमारे प्रति इवन सारे बच्चों के प्रति स्कूल के प्रति बिल्कुल हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर रखें. देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट, a teacher ought to check the learning environment in the classroom, the sitting position, enough light and ventilations, students having textbooks, copybooks, pen, pencil, warning the disturbing students etc. हमें डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स को भी वार्न करना चाहिए कि प्लीज़ ऐसे ना करें. डू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू सिट इन अ लेजी एंड ईजी वे वाइल टीचिंग इज़ गोइंग. जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो किसी भी बच्चे को जो लेज़ी तरीके से बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं अपनी काम कर रहे होते हैं हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए. आस्क देम टू सिट इन एन अटेंटिव वे. हम बच्चों को अटेंटिव वे में बैठने के लिए बोल सकते हैं कि प्लीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं उन बातों को सुनिए, ध्यान से बैठिए, अच्छे तरीके से बैठिए और हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को ग्रास्प करिए. सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट दैट हमें लर्निंग इन्वायरमेंट को चेक करना है कि हमारी क्लासरूम की लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो किस प्रकार से है. तभी जाके हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे. The next point is that a good teacher often stands and moves around while teaching. This will force the students to be attentive in their tasks, whether writing or reading. While moving around, just look at the work of the students are doing and give commands. हमें स्टूडेंट्स को कमेंट्स भी देने चाहिए, उन्हें कमांड्स भी देने चाहिए कि प्लीज़ ये काम ना करें, इस प्रकार से ना करें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान दें. Next point is that a teacher should use teaching aids such as charts, models, and the intelligence use of blackboard etc. Writing keywords, diagrams, illustrations etc. on the blackboard can be very helpful to students later for the better recollection. हम बच्चों से ये भी कह सकते अपने चार्ट्स मॉडल्स के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स द मेन पॉइंट्स इन एन इंटरेस्टिंग वे. जो भी मेन पॉइंट्स हैं
उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है। ये एक गुड टीचर का रूप है। इट मीन्स दैट अ गुड टीचर हैज़ द एक्सप्लेनेटरी पावर, मतलब आपके पास एक्सप्लेन करने की शक्तियाँ हैं कि आप बच्चों को इंटरेस्टिंग मैनर में भी पढ़ा सकते हैं। इट इज़ नॉट इनफ जस्ट रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बस बुक से पढ़ दिए और चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायर प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग दिस एक्सप्लेनेटरी पावर, मतलब आपको अपने अंदर एक्सप्लेन करने की पावर को यदि इंक्रीज़ करना है तो उसके पहले आपको सबसे पहले आपको खुद पढ़ के जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के जाना पड़ेगा अपने क्लासरूम में। Next point is that a teacher should employ a positive approach in accessing a work or a task done by the student. Give a lots of praises, comments and other rewards when they show improvements. अगर किसी बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसा हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो इस प्रकार से बने, तो हमें उसे प्रेज़ करना चाहिए, उसे कमेंट्स करने चाहिए और उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए ताकि वो बच्चा उस प्रकार से ही मेहनत करता रहे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अ गुड टीचर elicits or draws out responses from students in every class. Students should get some time to ask doubts or clarifications. By harsh comments, do not discourage the students who put up intelligent questions. हम अपने हार्श कमेंट्स के द्वारा, मतलब रूड बिहेवियर के द्वारा, उन बच्चों के मोटिवेशन को डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। Next point is that the subject matter taught by the teacher through the textbook or classwork should be understood and assimilated by the students. Discourage students who just learn by heart. जो भी चीज़ों को लर्न बाय हार्ट करते हैं वैसे बच्चों को डिस्करेज करिए कि उसे लर्न बाय हार्ट ना करिए बल्कि उस चीज़ों को समझिए। द स्टूडेंट्स माइंड शुड रिएक्ट ऑन द मैटर एनालाइज एंड देन स्टोर इट इन देयर माइंड्स. Use of memory is also very important for learning. A sharp memory is prerequisite for any good student. The teacher should have a clear idea what students learn by heart and what they need to understand. Next point is that a good teacher always has sufficient control over the discipline while teaching. When important points are explained, full concentration from the students is demanded. This is the main point. At other times, more relaxed atmosphere is encouraged. A sense of humor is important skill for creating interest among the students. मतलब हमारे पास sense of humor भी होना चाहिए अच्छा खासा. Next point is that a teacher should have specific objectives when he or she begins to teach a lesson. This means the teacher should clearly tell the students the task they should learn at the end of the class. For example, a lesson from English. The student understands the main theme, meaning pronunciations of the new words, the answers to the questions given in the textbooks and the workbooks, knowing special grammar applied in the lesson. Lesson में जो भी हमारी special grammar applied है वो भी समझना चाहिए. The next 12th number point is that a good teacher should have a systematic way of teaching. Teaching करने का भी एक systematic तरीका होता है. At the beginning of the class, a teacher recalls what was taught in the previous class briefly. Then a new passage is taught, during which the teacher repeats a few times the important points and principles and then concludes the period with summing up the main points. At this time, home tasks are given. पढ़ाने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा ही होता है. The next point is that a teacher uses a variety of techniques in the classroom. Direct teaching, in which teacher explains the matter. Peer teaching, in which smart students take up teaching. Project approach, in which student matter is assigned. Group discussions, in which group studies together. The teacher knows how to use group study. Experimental learning, teacher-centered approach, student-centered approach, etc. Subject-centered approach also. Sometimes the teacher acts as information giver. That's in maths or science. And at other times, he or she acts as a facilitator. Or at the other time, he or she acts as a facilitator. That's in arts or any other subjects. Next point is that a good teacher should have greater mastery over one subject matter. आपकी जो सब्जेक्ट है उसके मैटर में आपके पास बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए. The teacher knows more than what is in the textbook. जो भी टेक्स्ट बुक में है टीचर को हमेशा उससे ज़्यादा जानकारी अपने पास रखनी चाहिए. He or she uses outside textbook. He or she directs the students to find more about the subject from the library, from other people, etc. If the teacher is not knowing
some difficult points, tell the students that he or she will tell them later instead of trying to cover up one's ignorance. मतलब जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं गलत तरीके से उसे ना बताएं, गलत ना बताएं, बल्कि इस जगह पे आप एक्सक्यूज़ ले सकते हैं कि ठीक है, इन चीज़ों को मैं आपसे नेक्स्ट डे डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट a very important duty of a teacher is to assign regular written or oral homework. Regular homework. Students do not learn properly unless they revise their lessons at home. Yes, it's the right point. इसीलिए हमें इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए. Since homework is an extension classwork, too much load is not given on both written or the oral should be given at least thrice a week. Next point is that a good teacher uses correction method. मीन्स करेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, और यदि जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि उसके जगह पे आप उन चीज़ों को सही बताइए कि यस ये आपका गलत है, इसका सही आंसर ये होगा, एंड देन प्रोसीड. तो 60 नंबर पॉइंट्स जो है ये बताती हैं कि अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई है तो उसे बस करेक्ट ना करिए, बल्कि जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ उन्हें बताइए और फिर से वो चीज़ उनको करने के लिए कहिए. Coming on the next point, that is 17th number point, is a teacher ought to have a better knowledge about various resources books such as reference books in the library, other textbooks, workbooks and sample questions from the other publishing companies. मतलब एक टीचर के पास जो है ना बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से भी, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं जो अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगी यदि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं रहेगी. तो इन चीज़ों को एक साथ लेके चलने के लिए आपके पास रेफरेंस बुक हमेशा होनी चाहिए. The next 18 number point says that a good teacher ought to know a variety of questions which may be direct or twisted. एक टीचर के पास ऐसी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट पूछनी है और कैसे क्वेश्चन को हमें उसे ट्विस्ट करके पूछना है, दैट इज़ घुमा के पूछना है. देन हमारे एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं. सिंपल क्वेश्चंस विदाउट वैरायटी ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स कैन रियली हार्म द स्टूडेंट्स. जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो बच्चे को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी पढ़ लेता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन में ही कुछ अलग चीज़ें होती हैं. इन स्मॉलर क्लासेस बिसाइड डायरेक्ट क्वेश्चन मैचिंग मल्टीपल चॉइसेस, शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड. बच्चे क्लास में या बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जो बिल्कुल आसानी से वो बना सकें. द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इट इज़ extremely important that every teacher and student really knows the answering mode. हर टीचर और बच्चे को कैसे आंसर करना है ये पता होना चाहिए. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही तरीका नहीं मालूम होता है आंसरिंग करने का कि हम किस प्रकार से आंसर दें. तो यहाँ पे वो टीचर की ड्यूटी है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल आंसर्स बच्चों के सामने रखें, बच्चे उन चीज़ों को लिखें, उन चीज़ों को फॉलो करें और उनकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए. The next 20 number point is that a good teacher conducts class test until test and final exam in a professional way. मतलब क्लास टेस्ट भी करिए. आजकल तो ऐसा हो गया ना कि आपका एक चैप्टर यदि कंप्लीट हो रहा है तो आप उसका भी टेस्ट ले सकते हैं. तो इस प्रकार से ये एक गुड टीचर की निशानी है. यदि आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स ऑफकोर्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो क्लास टेस्ट भी आपको लेनी चाहिए. प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर ऑलवेज टेकन बिफोर द रिटन एग्जाम्स. करेक्शन ऑफ आंसर पेपर इज़ टू बी डन विथ अ ग्रेट केयर. बहुत ही ख्याल और ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमें सही करना चाहिए आंसर को. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नो टीचर इज अलाउड टू डिस्कार्ड और कट शॉर्ट लेसन्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक्स एक्सेट्रा विदाउट द एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल. बिना प्रिंसिपल के परमिशन के हम किसी भी लेसन को नहीं हटा सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, आप इसे ना पढ़िए, बल्कि यदि आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेके उस सिलेबस को कंप्लीट करें, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से, जो बच्चे को आसानी हो पढ़ने में, आसानी हो समझने में. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ गुड टीचर अवॉइड अनहेल्दी प्रैक्टिसेस सच एज आस्किंग selective easy questions, making lesson too easy and avoiding difficult lessons or passages, giving hints and suggestions to questions which will be asked in the exams, taking lessons too slowly or too fast. ये ऐसा आपको नहीं करना है. किसी भी लेसन को बहुत ही फास्ट कंप्लीट कर दिए, किसी भी लेसन में काफ़ी टाइम ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एवरी मैच्योर टीचर बिल्ड्स अप स्कूल कल्चर इन हीज और हर क्लासेज, स्पेशली द क्लास टीचर. ये क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल कल्चर को मेंटेन करके रखे अपने क्लासरूम में.
द चिल्ड्रन ग्रो एंड बिहेव एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द टीचर। जो भी डायरेक्शन हम बच्चों को देंगे बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए एक अच्छे टीचर बनिए और अपने क्लासरूम को हमेशा वेल डिसिप्लिन्ड एंड मेंटेन्ड जो भी स्कूल के डेकोरम है उन चीज़ों को बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशल इफ़र्ट लगाना चाहिए हमें उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझने के लिए कि स्टूडेंट की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें यदि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमें वो हेल्प करना चाहिए। ट्रीट एवरी चाइल्ड एज इफ़ द चाइल्ड इज़ योर ओन। हर बच्चे को अपने बच्चे समझकर उनका केयर करें, उनके साथ वैसा ही सलूक करें, व्यवहार करें। स्पेशल केयर शुड बी टेकन हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव इन द असेंबली, बिहेव इन लिविंग द क्लासरूम, वाइल विजिटिंग अदर प्लेसेस। इन या फंक्शन में बच्चे किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, इन चीज़ों का बिल्कुल आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उन चीज़ों पे स्पेशल केयर रखना चाहिए। नेक्स्ट 24th नंबर पॉइंट सेज दैट अ गुड टीचर नोज हाउ टू यूज़ पनिशमेंट इफेक्टिवली। यहाँ पे हम टीचर्स लोग मात खा जाते हैं कि हमें पनिशमेंट को किस प्रकार से इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना है, जो हम नहीं कर पाते हैं। ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन किया गया है बच्चों को कि हम मार नहीं सकते हैं। LKG टू 3rd क्लास के स्टूडेंट तक को बिल्कुल नहीं मारना है। नेवर यूज़ अ स्टिक और व्हेन अ टीचर इज़ एंग्री। जब भी हम गुस्से में आते हैं तो हमें स्टिक नहीं पकड़ना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी क्लियर लॉ विथ नन बेलेबल अरेस्ट वारंट। यदि आप किसी बच्चे को मारते हैं और उसे काफ़ी नुकसान पहुंच जाती है उन चीज़ों से, उसे फिजिकली हार्म पहुंचता है, मेंटली हार्म पहुंचता है, तो वहाँ पे नॉन बेलेबल वारंट है लॉ के अनुसार। तो इसलिए हमें पनिशमेंट को सही तरीके से यूज़ करना है कि बच्चे को नुकसान भी ना पहुँचे और उनका मेंटल स्टेट जो है वो भी बिल्कुल सही तरीके से काम करे। कुछ केसेस में हम गुड टीचर जो है वो ट्राई करता है कि डिस्ट्रक्टिव मैनर जो भी बच्चे बिहेव कर रहे हैं उन चीज़ों को फटाफट से सॉर्ट आउट कर दे। डू नॉट मेक हर्टिंग कमेंट्स गॉसिपिंग विद अदर पेरेंट्स। मतलब हमें हर्टिंग कमेंट्स या गॉसिप नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों के बारे में या दूसरे स्कूल्स के बारे में, अपने पब्लिक प्लेस में, उस स्कूल के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। इन ऑल केसेस रेस्पेक्ट द चाइल्ड एंड ट्रीट द चाइल्ड एज यूनिक। हर केस में बच्चे को खास समझा जाना चाहिए, यूनिक समझा जाना चाहिए और उन्हें अच्छे तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट 25th नंबर पॉइंट इज़ दैट अ गुड टीचर इज़ एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। अगर आप अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हैं तो ये आपका एक गुड टीचर होने की निशानी है। टू बी एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट टीचर वन शुड नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ, किस क्लास के, किस उम्र के बच्चे के साथ किस प्रकार से बात करनी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। A teacher has to communicate with his or her students, parents, and the school management. Communication should be clear, precise, and prompt. Misunderstanding and confusion should be removed at the earliest by speaking directly to the person concerned. Always give clear-cut direction to the student when assignments and the tasks are given. Next point is that a good teacher takes precautions to avoid accidents or unforeseen happening to the school. He or she all knows how to deal with an accidents if it takes place. अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी बच्चे के साथ कुछ कांड हो जाती हैं, अगर आए दिन स्कूल में होते रहते हैं, बच्चे आपस में मारपीट करते रहते हैं, किसी के सर में चोट लग जाता है, किसी के हाथ में चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो इन चीज़ों से आप किस प्रकार से एक गुड टीचर होने के महत्व को समझ सकते हैं। अ गुड टीचर शुड टेक अ प्रिवेंटिव मेथड। जो भी प्रिवेंटिव मेथड है उसे लेना चाहिए, किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो। नेक्स्ट 27th नंबर पॉइंट इज दैट अ स्कूल्स इमेज कैन बी स्पॉइल्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ पब्लिक फंक्शंस एंड इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक फंक्शंस में बच्चों के जो इमेज है, उनका जो बिहेवियर है वो स्कूल का इमेज को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए एक गुड टीचर यदि आपको बनना है तो वहाँ पे जब भी कोई फंक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देना है, बच्चे को गाइडलाइंस देनी है, उसे गाइडेंस करना है, उसे गाइड करना है या बच्चे को कंट्रोल करना है। अ टीचर शुड नॉट थिंक दैट ही और सी इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली इन हिज और हर क्लास। टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि बस क्लासरूम में ही उसको मेंटेन करके रखना है डिसिप्लिन को, बल्कि इन ऑल द अदर प्लेसेस ऑल्सो मेंटेन करके रखना चाहिए। गुड मैनर्स शुड बी insisted upon at all cost. Respect towards teacher should be enforced. टीचर के प्रति जो भी रेस्पेक्ट है वो हर मैनर में इन चीज़ों को इन्फोर्स करना चाहिए। बच्चों में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि किस प्रकार से वो टीचर की रेस्पेक्ट करें, जो आजकल पूरी तरह से
ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 28 नंबर पॉइंट इज़ दैट द की टू सक्सेस इन एजुकेशन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो की टू सक्सेस है एजुकेशन के मामले में। अ गुड टीचर इज़ एन एक्सीलेंट मोटिवेटर ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा शिक्षक जो है वो एक एक्सीलेंट मोटिवेटर होता है स्टूडेंट्स के लिए। The next 29th our point is that a good teacher is a constant builder relationship. Every year a new batch of students comes and goes under his or her care. A teacher deals with the students, parents and school authorities who are people with emotions, feelings, sentiments, etc. A teacher is always in the process of building relationships with every child in and outside the classroom. The art of understanding and appreciating students will help a lot in establishing a good relationship. Knowing the child's, his or her parents' family backgrounds, जो भी फैमिली उसकी बैकग्राउंड है उन चीज़ों को समझते हुए एक गुड टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे। हर साल नए बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे, और फिर बहुत से बच्चे हर साल नेक्स्ट बैच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें हर बच्चों के साथ एक अच्छा कांस्टेंट रिलेशन बना के रखना चाहिए। ये था 29th नंबर पॉइंट जो है। इसमें और कुछ चीज़ें कि अ गुड टीचर अवॉइड एनीथिंग विच हर्ट्स अ स्टूडेंट्स एंड नेवर ट्राइज टू हैरास अ चाइल्ड even if the parents and guardian has raised biased criticism. अगर कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट, कोई भी गार्जियन उस टीचर के प्रति बायस क्रिटिसिज्म करता है, उसके बावजूद भी एक टीचर को जो है हर्टिंग कमेंट्स नहीं करने चाहिए, एक स्टूडेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी टीचर शुड मेक एन एफर्ट टू बिल्ड अ जस्टिफाइड कल्चर। अ प्रोफेशनल टीचर विद अ सुपरवाइजर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ट्रेट्स शुड बी द एम ऑफ एवरी टीचर। हर टीचर का ये एम होना चाहिए कि उनका जो भी इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ट्रेट है वो प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ रहे। Politeness, care, compassion for the student and a legitimate time, pride and hard work for the advancement of the school are essential for building up this culture. इस कल्चर को बनाने के लिए जो भी है हमें केयर एंड कॉम्पैशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ गुड टीचर जनरली टेक्स लीव इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट अफेक्ट द टीचर in the classroom. If emergency cases, the teacher assigns all possible tasks in his or her absence or asks help from the teacher or other section to continue the important lessons. एक अच्छे टीचर को कभी भी लीव नहीं ले लेना चाहिए ऐसे ही, बल्कि उन्हें एक इस प्रकार से लीव लेना चाहिए कि बच्चे की जो भी पढ़ाई है वो ना किसी प्रकार से इफेक्ट ना हो। पेरेंट्स एंड गार्जियंस डू नॉट अप्रिशिएट दैट अ टीचर रसेस थ्रू सेवरल लेसन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लेसन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस. The general performance of the student in each class is the duty of the general performance of a student in each class is the कहाँ पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी आपको कि 31 नंबर जो पॉइंट है वो ये बताता है कि एक अच्छे टीचर को लीव वैसे समय में लेना चाहिए या उस प्रकार से लेना चाहिए कि उनकी जो पढ़ाई की कोर्स है बच्चे की वो ना किसी प्रकार से इंटरप्ट हो। नेक्स्ट, the last point is that a professional teacher is expected to keep and update all the documents related to teaching, maintaining of attendance register, mark register, progress report card, result of internal test, etc. It is very important. मतलब हर चीज़ बिल्कुल up to date रहनी चाहिए. Writing the name of the students, parents, admission number, roll number, एक्सेट्रा इन एनी स्कूल रिकॉर्ड शुड बी डन विथ अटमोस्ट केयर. बहुत ही सावधानी के साथ स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना भी एक बहुत अच्छा टीचर का कर्तव्य होता है. प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस, लेसन प्लान्स, क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम शुड बी डन नीटली एंड प्रॉम्प्टली. बिल्कुल नीट तरीके से होना चाहिए. जो भी हम लेसन प्लान्स बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं एग्जाम के लिए, सिलेबस को कवर अप करने की सोचते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नीटली डन होनी चाहिए. नो मिस्टेक कैन बी मेड इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिशन नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ. ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें कि कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अटेंडेंस रजिस्टर शुड बी केप्ट नीट एंड टाइडी. कुछ टीचर होते हैं उसे बहुत घिचपिच तरीके से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए. अ गुड टीचर कीप्स ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल. मतलब जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसे बहुत अच्छे तरीके से रखना एक गुड टीचर का कर्तव्य होता है और एक गुड टीचर की निशानी है. तो यहाँ पे चलिए वीडियो को
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपने इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और इसी प्रकार से आपको जानकारी और चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और बने